with a uniform acceleration. So we are doing graphs of motion. This is a question about a ball falling under gravity and it has uniform acceleration and obviously air is not present. Now, the topic that we are doing is using proportional quantities to draw certain graphs. For example, the first graph you have to draw is about what will be the velocity of the ball with time. Here we know that it's a uniform acceleration. The second graph that I will ask you to draw is momentum of the ball versus time. The third graph that I will ask you to draw is momentum of the ball. The third graph that I will ask you to draw is the momentum of the ball against its velocity. So these are the graphs you are supposed to draw, and then you have number 2. If they ask you to draw the graph of the ball is falling, they ask you to draw height of the ball, versus time, height, time. Then they ask you to draw GP versus time. Then they ask you to draw GPE versus height. These are the graphs to be plotted. So velocity time, momentum, velocity, then you have height time, GP time, then you have GP versus height. अच्छा बच्चों, velocity time graph क्या होगा? You know it's a uniform acceleration. तो जब यूनिफॉर्म एक्सलेशन होते तो वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली. ये पहली बात हो गई. सो दिस इज द वेलोसिटी का ग्राफ. रीजन सर जी बेटा, ये फर्स्ट पेज है बेटा. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग इज अबाउट you have a ball that is falling in vacuum under gravity and it falls with a uniform acceleration. So velocity time graph is like this because of uniform acceleration. This is the graph that you studied in your O level. This is the graph that you studied in your O level. So velocity time graph with a uniform acceleration. Now what about momentum time? How you will relate that? Beta, momentum जो है it depends on the velocity. For example, momentum जो है it has a direct proportion. Momentum has a direct proportion with velocity. Now if two quantities have a direct proportion, then they will have a similar graph. Momentum and velocity have a direct proportion. As a result, the graph of momentum versus time would be, it would be a straight line through the origin. So since momentum has a direct proportion with the velocity, so the graph is a straight line through the origin. What about momentum versus velocity? They have a direct proportion. So if two quantities have a direct proportion, their graph is already a straight line through the origin.
So these are the graphs in the first case. अच्छा बच्चों ये बताओ, Sidra beta, you have to tell. The object having a uniform acceleration and the speed is increasing uniformly. So what do you think, what kind of height time graph will get? Sir, Speed is increasing uniformly, so I think downward yes, sloping. this would be the height time graph. Okay. So the reason for this graph is increasing speed. Height time graph will be like this because of the increasing speed. What about GP versus time? GP has सर a वो भी वैसा ही होगा. हाँ जी, GP का height के साथ direct proportion है, तो obviously GP with time will be same, similar graph. GP versus height, they have a direct proportion, so it would be a straight line through the origin. GP versus height would be a straight line through the origin. So GP versus height is a straight line through the origin. This is the graph of GP versus height because of direct proportion. अच्छा बच्चों, यहाँ तक हमने कर लिया ग्राफ्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. सिद्रा बेटा, ये वाला पेज आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है या कोई कंफ्यूजन है इसमें? सर समझ आ गया. ठीक है. अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ग्राफ का स्क्वायर करना पड़ता है. 3 कर्व्स हैं जिनका स्क्वायर हमें आना चाहिए. लिखें स्क्वायरिंग अ ग्राफ. पहला पॉइंट, square of a constant number या square of a constant is a constant. If you have a constant number, its square will be a constant number. For example, if they give you a graph of a quantity x versus time and they ask you what would be square of x versus time, and they say this quantity x remains constant over time. They say this x remains constant over time. Square of a constant is constant. If x is a constant, then its square is also constant. The square of constant is always a constant. Number 2, if you have a graph that is straight line through the origin, what would be a square? For example, if this is x and they ask you to draw x square. First of all, if you take square of 0, this is 0. Square of 0 is 0. For example, here you have 1. Square of 1 is 1. So square of 0 is 0, square of 1 is 1. सिद्रा बेटा, अगर 1 से छोटे नंबर्स का स्क्वायर लें, तो they are bigger than their original value or smaller than their original value. For example, 0.9 का स्क्वायर 0.81. ठीक है, ये देखें. 0.9 का स्क्वायर 0.81. 0.5 का स्क्वायर 0.25. 0.1 का स्क्वायर 0.01. So when you take square of numbers which are smaller than 1, the value is even smaller. So square of numbers smaller than 1 is even smaller than their original values, which means that the square of these numbers will be smaller than the original numbers. So this black curve represents the square. And the numbers which are bigger than 1, their square is bigger than their original value. So you will get this shape for the square. This is x square. So speaking generally, if this is the graph of x versus t, and you have this graph, isko ratta laga lo, then square of x versus time will be, you have this curve.
So when you have this type of graph, square will be like this. सर Then मुझे सेकंड ग्राफ समझ नहीं आया सर, वो जो आपने ये वाला जो बनाया, कर्व वाला जो आपने बनाया। एक काम करो, याद रख सकते हो कि इसका स्क्वायर ये होता है, इसको याद रखो चलो सर, चलो ठीक है सर। कि जो ये वाला ग्राफ होगा, ठीक है, उसका स्क्वायर ये होगा। अच्छा, जब मैं कुछ समझा रहा हूँ ना, उसमें फिर इन बिटवीन थोड़ी सी डिस्कशन कर लिया करो ना, जब आप लॉस्ट हो रहे हैं। अच्छा, नंबर 3 जो है ना, नंबर 3 में अब मैं इस तरह से एक्सप्लेन करने की जगह बस आपको शेप बता रहा हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल तो याद ही रखना है। x वर्सेस t अगर आपका ग्राफ है लाइक दिस, तो इसका जो स्क्वायर होगा दैट वुड बी x का स्क्वायर वर्सेस टाइम वुड बी लाइक दिस। ये हो गया इसका स्क्वायर। तो हर एक ग्राफ का जो स्क्वायर है, जैसे इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये और इसका स्क्वायर ये। ठीक है जी बच्चों, समझ आ गई ये बात? अच्छा, अब ये इसकी एप्लीकेशन क्या होगी ये देखते हैं जरा, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। एक क्वेश्चन है जी, फॉर एग्जांपल सर एक सेकंड पिछले पेज पे जाएंगे स्क्रीनशॉट लेने। जी जी बेटा, ये वाला पेज, इसमें हमने ग्राफ बनाया और इसका स्क्वायर बनाया। थैंक यू सर। अच्छा, अब ये जो हमने पिछला पेज पढ़ा है ना, अगर हम इसकी समरी देखें फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो इस तरह से है। फर्ज करें आपको कहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ है इस तरह से, ये v वर्सेस t है, और आपको कहते हैं बताओ v का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपको एक ग्राफ देते हैं जो कि कांस्टेंट नंबर को शो कर रहा है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का स्क्वायर भी क्या होता है, कांस्टेंट, ये हमने इसका स्क्वायर कर दिया। अच्छा, इसी तरह अगर आपको देते हैं ये वाला ग्राफ जिसमें यूनिफॉर्म इंक्रीज है और ये है स्पीड टाइम ग्राफ, आपको कहते हैं बताओ इसका स्क्वायर क्या होगा, यानी कि वी स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा। तो आपने जो शेप याद रखनी है वो ये है कि यूनिफॉर्म इंक्रीज का जो इस लाइन का जो स्क्वायर होता है वो होता है इस तरह का, तो इसका स्क्वायर ये होगा। और तीसरा जो आपने याद रखना है वो ये है कि अगर इस तरह का ग्राफ हो, ये v और ये t, तो इसका जब हम करेंगे स्क्वायर, v स्क्वायर वर्सेस t, जो इसका होगा वो होगा ये वाला कर्व। बच्चों समझ आ गई बात? तो ये हो गया जी ग्राफ को स्क्वायर कैसे करते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसकी हम 2 एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद हमने ग्राफ्स की एग्जांपल्स देखनी है। अच्छा, लिखें, एक क्वेश्चन लिखें। बच्चों आई बिलीव कि आपने ये वाला पेज कॉपी कर लिया होगा। अगर आपने कॉपी कर लिया तो इट्स गुड, अगर आपने कॉपी नहीं किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, वो ये है कि a ball is falling uniformly under gravity. A ball is falling uniformly under gravity, ये पहली बात है। इसका जी आपको गिवन है ग्राफ स्पीड वर्सेस टाइम। फिर एग्जामिनर कहता है चलो एक काम करो, इसका स्पीड का स्क्वायर का ग्राफ भी बना के दो, स्पीड का स्क्वायर वर्सेस टाइम। और एग्जामिनर जो आखिरी ग्राफ आपसे पूछ रहा है वो है जी, is asking about graph of kinetic energy versus time. These are the 3 graphs which examiner is asking from you. तो
पहला ग्राफ है स्पीड वर्सेस टाइम, दूसरा ग्राफ है स्पीड का स्क्वायर, और एक मिनट, फॉलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखना है। A ball is falling with uniform acceleration under gravity, ये लिखना है। A ball is falling with uniform acceleration under gravity. A ball is falling with uniform acceleration अंडर ग्रेविटी। अच्छा बच्चों, जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा ना 20 दिसंबर को, उसके लिए मैं आपको कम से कम 1 वीक से ज्यादा का टाइम दूंगा, 10 डेज दूंगा, और उसमें मैं आपको जो दूंगा ना असाइनमेंट, उसमें साथ में वीडियो लेक्चर्स भी दूंगा, नोट्स भी दूंगा, और उसी में से बड़ी सिंपल किस्म की असाइनमेंट होगी। द पर्पज इज दैट कि आपसे कुछ अच्छा कराया जाए, ताकि अगर बाद में अल्लाह ना करे अगर प्रिडिक्टेड ग्रेड्स के टुवर्ड्स जाना पड़े तो आपकी कोई अच्छी चीज़ें भी मेरे पास हों। तो मैं आपको बहुत ईजी असाइनमेंट दूंगा, जस्ट टू इंश्योर दैट कि आपका कुछ मेरे पास क्वालिटी वर्क हो, ताकि मैं अगर आपको अच्छे ग्रेड्स दूं तो मैं उसको जस्टिफाई कर सकूं। तो पर्पस असाइनमेंट का आपको ट्रबल करना नहीं है, बल्कि आपके अच्छे ग्रेड्स लगाना है लेटर ऑन। मेरे पास कुछ हो जिससे मैं प्रूव कर सकूं कि यू आर गुड स्टूडेंट्स। स्पीड वर्सेस टाइम, अच्छा इसका जो होगा वो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो इट इज स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, so it is straight line through the origin. Speed square versus time, it would be this graph, this is square of speed. अच्छा अब ये तो हमने सीखा हुआ है कि इसका स्क्वायर ये होता है। What about kinetic energy versus time? बेटा kinetic energy की जो इक्वेशन हमने सीखी है, kinetic energy is equal to 1/2 mv square. During the fall m is constant, 1/2 वैसे ही constant, तो k depends on what? K depends on velocity. square of speed. K depends on square of speed. तो ke depends on speed का square. बेटा हमने क्या रूल सीखा है? If two quantities have a direct proportion, then क्या कहोगे बेटा? If two quantities have a direct proportion, then their graphs are exactly same. Or you say that they are similar. बेटा जब भी दो क्वांटिटीज का डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो उनके ग्राफ्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ क्या होगा? एग्जैक्टली सेम होगा। तो के ई वर्सेस टाइम ये वाला ग्राफ होगा। और कैनेटिक एनर्जी का ग्राफ जब भी आपके एग्जाम में आता है, काफी दफा आया हुआ है, उसमें हम स्पीड को स्क्वायर कर देते हैं। एक एग्जांपल मैं और करा देता हूँ। सिद्रा बेटा कॉपी हो गया ये वाला पेज? सिद्रा बेटा ये वाला पेज कॉपी हो गया? जी सर, हो गया। एंड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? जी सर। अच्छा अब आप आ जाए नेक्स्ट पेज पे। एक क्वेश्चन लिखें, a ball projected upwards reaches the highest point and returns to the ground under gravity. So the story is, a ball projected upwards reaches the highest point and returns to the ground under gravity. हैं जी, समझ आ गई बात? ये है सिचुएशन। और air is not present under gravity in vacuum. So basically we are ignoring the
air resistance. Now what they are asking, the first graph is about what is the variation of velocity of the ball. What is the variation of velocity of the ball against time? So velocity time graph. बेटा velocity time graph आप खुद सोचें, जब बॉल ऊपर जा रही है, सीधा बेटा आप बताएं, जब बॉल ऊपर जा रही है तो velocity is increasing और decreasing? क्या कहेंगी आप? Increasing, sir. सोच के अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये तो बॉल खुदा के पास पहुंच जाएगी। Oh, क्या कह रही है बेटा? डिक्रीजिंग। ये तो बॉल जा रही है, स्पीड भी फिर रुकेगी कैसे? तो बेटा ये डिसेलरेशन है। जी सर। बॉल को आप कहाँ भेजना चाह रही हैं? स्पीड डिक्रीजिंग। बेटा ये पॉसिबल नहीं है, स्पीड डिक्रीज होती है तभी तो बॉल रुकती है ना ऊपर जाके। तो ऊपर जाते हुए शुरू में स्पीड ज्यादा होती है, फिर बॉल रुक जाती है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये होगा कि एयर जब नहीं होती तो यूनिफॉर्म डिसेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। बच्चों समझ आ गई या कोई कंफ्यूजन है? A to B, the ball is decelerating uniformly. The ball is stopping. सिद्रा बेटा क्लियर? जी सर। मेहर आपको क्लियर है ये बात? मेहर क्लियर है ना? अच्छा, ऊपर जाते हुए A to B बॉल जो है वो रोक रही है। बेटा फिर वो बॉल ना अपनी डायरेक्शन चेंज करके वापस आएगी ना। Now the ball is moving downwards. And while moving downwards, obviously the speed is increasing now. The ball is accelerating. So the speed in the downwards motion, the speed is increasing. जब बॉल नीचे आएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। The ball is speeding up. So in the downwards motion, the ball is speeding up. It is accelerating. तो ये ग्राफ हो गया। So in the downwards motion, the ball is accelerating और speeding up. तो ये हो गया इसका B to C का मोशन। तो ये हो गया इसका B to C का मोशन। This is velocity time. And positive velocity means upwards motion. ये इस पे लिख लेते हैं हम। Positive velocity means upwards motion. And negative velocity means downwards. Negative velocity means downwards motion. सिद्रा बेटा क्लियर यहाँ तक कि जो पॉजिटिव वेलोसिटी है उसका मतलब है अपवर्ड्स मोशन और जो नेगेटिव वेलोसिटी है उसका मतलब है डाउनवर्ड मोशन। बेटा क्लियर यहाँ तक? जी सर। अच्छा, अब देखें, ये तो बात हो गई यहाँ तक। अब जो अगली बात है वो ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि आप इसी ग्राफ को यूज करके ये बताएं कि स्पीड का ग्राफ क्या होगा टाइम के साथ। अगर आपको कहा जाए इसी ग्राफ को यूज करके आप बताएं स्पीड का ग्राफ टाइम के साथ क्या होगा, तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ वुड बी, ये होगा यहां तक, स्पीड टाइम ग्राफ यहां तक होगा स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सेम। द ओनली डिफरेंस इज वेलोसिटी इज अ वेक्टर, इट गोज इनटू नेगेटिव, स्पीड रिमेन्स पॉजिटिव, स्पीड नेगेटिव में नहीं जाता। तो जब वेलोसिटी का ग्राफ गिवन हो और उससे स्पीड का ग्राफ बनाना हो तो दिस इज द मेथड। सिद्रा बेटा समझ आ गया? सर ये डायग्राम समझ नहीं आया सर, मैं फिर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का। रुक जाओ, मुझे ये बताओ कि ए टू बी मैंने ग्राफ को कोई चेंज किया है, ये बताओ पहले। जो ए टू बी ऊपर ग्राफ गिवन है, देखो ए टू बी जो है जब वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड्स थी और पॉजिटिव था तो मैंने वही सेम ग्राफ बना दिया। तो ए टू बी देयर इज नो चेंज, पहली बात ये हो गई। अब स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं होती, तो बेटा वेलोसिटी का ग्राफ जो नेगेटिव में वैल्यूज होंगी ना, जैसे ये वाली, इन्हीं वैल्यूज को आप पॉजिटिव में ड्रॉ कर देंगे। जैसे अगर वेलोसिटी होगा -1 तो स्पीड होगा +1, वेलोसिटी अगर होगा -2 तो स्पीड होगा +2, वेलोसिटी अगर होगा -3 तो स्पीड होगा +3। जैसे अगर आपसे पूछा जाए ना कि वेलोसिटी और स्पीड की वैल्यूज में क्या डिफरेंस होगा, तो अगर हम वेलोसिटी और स्पीड की वैल्यूज को कंपेयर करना चाहते हैं तो वी शुड नो दैट कि जब वेलोसिटी होगा +2 तो स्पीड भी होगा +2, जब वेलोसिटी होगा +4 स्पीड भी होगा +4।
लेकिन जब वेलोसिटी होगा -2, स्पीड जो है वो फिर हो जाएगा +2। जब वेलोसिटी होगा -3, स्पीड तब भी +3 होगा। अब आइए बात समझ, तो वेलोसिटी जी सर। माइनस हो या प्लस हो, स्पीड +c रहता है। तो ये वाला जो पार्ट है ग्राफ का, ये पॉजिटिव में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये हो गया B2C वाला पार्ट। ग्रेडियंट सेम होता है तो इट शुड अपीयर सेम। तो ये हो गया जी स्पीड का ग्राफ, इसके साथ टाइम के साथ, एंड इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ नेगेटिव पार्ट। ठीक, और वैल्यू इनिशियल वैल्यू से ग्रेटर क्यों है? क्योंकि थोड़ा सा नीचे जाके लग रहा है। खैर, ये ग्राफ हो गया स्पीड का टाइम के साथ। अब अगर स्पीड टाइम ग्राफ की बेस पे आपसे पूछा जाए कि बताएं कैनेटिक एनर्जी का क्या ग्राफ होगा फॉर द गिवन सिचुएशन, तो कैनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, यू नो दैट वो स्पीड का स्क्वायर होती है। तो उसके लिए पहले हमें स्पीड का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप बताएं इसी सिचुएशन में स्पीड का स्क्वायर का क्या ग्राफ होगा, v² वर्सेस टाइम, तो बेटा हमने पिछले पेज पे सीखा था कि जो A to B वाला कर्व होता है, ये देखें, ये A to B वाला कर्व है, इसका स्क्वायर इस तरह का होता है। ये हम पहले ही सीख चुके हैं। तो स्ट्रेट लाइन का जो स्क्वायर है वो कर्व होता है। तो V का स्क्वायर अगर बनाना है तो A to B जो शेप बनेगा वो होगा लाइक दिस। ये है जी A to B। तो ये हो गया v² फ्रॉम A to B। व्हाट अबाउट B to C? बेटा B to C जो ग्राफ बनेगा दैट वुड बी, वो फिर ये वाला है ना स्ट्रेट लाइन, इसका जो स्क्वायर है वो इस तरह का होता है। सिद्रा बेटा आपको समझ आ गई इसकी? जी सर। मेहर आपको? सर जी सर, ये ये इसलिए पैराबोला होगी, बन सर गया। ये नेगेटिव में था। हाँ हाँ, ये बात सुनो, नेगेटिव में तो था, अभी तो स्पीड का स्क्वायर ले रहे हैं ना, मेरी बात सुनो। अभी सिर्फ इस ग्राफ पे फोकस करो। देखो, ए बी वाली ये लाइन है, इस लाइन का स्क्वायर इस तरह का होगा, ठीक है यार। वो अब पैराबोला बनेगा, जो बनेगा लीव दैट, बस ये फोकस करो कि क्या स्क्वायर क्या होगा इस तरह की लाइंस का। इसका स्क्वायर होगा ये वाला ग्राफ। अब मुझे बताओ, हमने स्पीड वाले ग्राफ का स्क्वायर किया है तो हमें किसका ग्राफ मिला है? वेलोसिटी का। बेटा आती है बात समझ? हाँ जी बताओ मेहर, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ kinetic energy versus time, what is the graph of kinetic energy versus time? तो बेटा आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं kinetic energy का ग्राफ टाइम के साथ क्या होगा, ठीक है। तो you know that kinetic energy depends on square of v। kinetic energy होता ही v का स्क्वायर है। तो जो v² का ग्राफ है, आपने वही ग्राफ रिपीट कर देना है। इट इज लाइक दिस। तो कैनेटिक एनर्जी का वही ग्राफ होगा जो v के स्क्वायर का ग्राफ था। मेहर कोई कंफ्यूजन है या समझ आ गई यहां तक? सर क्लियर। अच्छा, बाकी बच्चों, नया बेटा क्लियर है आपको ये वाला? अच्छा मेरी बात सुनो, अब फर्ज करें आपको सिचुएशन नहीं दी हुई, सिर्फ एक ग्राफ दिया हुआ है और उसकी बेस पे आपसे कुछ और ग्राफ पूछे हुए, ठीक है। अब आपसे कहा हुआ है कि जी आप इस पे सोचो जरा। फॉर एग्जांपल आपको जनरलाइज करके ये ग्राफ दिया हुआ है कि वेलोसिटी का ग्राफ है टाइम के साथ, और आपको पहले से ही गिवन है। वो कहते हैं जी वेलोसिटी टाइम है ये, फिर ये किस चीज का ग्राफ है उस पर डिस्कशन नहीं हो रही, बट दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखें A to B, B to C, C to D, D to E एंड सो ऑन, ठीक है। अब वो आपसे कहते हैं भाई आप हमें बना के दें इसका, पहले तो बना के दें इसका स्पीड का ग्राफ टाइम के साथ। आपने खुद सोचना है इसका स्पीड का ग्राफ टाइम के साथ क्या होगा, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। और फिर आपने सोचना है कि इसी का कैनेटिक एनर्जी का ग्राफ टाइम के साथ क्या होगा। चलो जी बच्चों शुरू हो जाओ। इसका आपने स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है और फिर आपने इसका बनाना है कैनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम।
तो बेटा ये बताएं ज़रा, ये जो 1 वाली लाइन है ये तो उसी तरह रहेगी। अच्छा, जो 2 वाली लाइन है वो नेगेटिव है ना, तो वो हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है जी, ये 1 वाली लाइन हो गई और ये 2 वाली लाइन हो गई। बेटा आती है यहाँ तक बात समझ? फिर 3 वाली जो लाइन है वो भी नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो असल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर ये हो गया C, फिर C के बाद हम पहुंचे इस जगह पे, फिर D वाला जो पार्ट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो बेटा क्या हुआ है, बेसिकली जो नेगेटिव पार्ट है वो रिफ्लेक्ट हो गया। अच्छा, मैं लेटर थोड़े डिफरेंट लिखता हूँ ताकि मैं थोड़ा बेहतर इसको बता सकूँ। B मैं बीच में लिख लेता हूँ ना। अच्छा, ये यूं है, ये A है फर्ज करें, B यहाँ पे है, C यहाँ पे है, D यहाँ पे है, E यहाँ पे है, F यहाँ पे है, G यहाँ पे है, फॉर रेफरेंसेस H यहाँ पे है, I यहाँ पे है। अब ये देखें, ये हो गई A टू B वाली लाइन, B टू C नेगेटिव में थी तो पॉजिटिव हो गई, C टू D, D टू E, फिर E टू F, फिर F टू G, फिर G टू H, H टू I। सीधा बेटा आ रही है इसकी समझ? जी सर। जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बिकॉज स्पीड सिर्फ नेगेटिव नहीं होती, बाकी वही रहेगा। अच्छा, अब बात है कैनेटिक एनर्जी की। बेटा कैनेटिक एनर्जी जो है वो स्पीड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड करता है, स्पीड के स्क्वायर पे। तो महर इस स्पीड के ग्राफ से के का ग्राफ हम बना लेंगे। ए टू बी की जो शेप है उसका जो स्क्वायर होगा इट वुड बी लाइक दिस। ये हो गया ए टू बी, उसका स्क्वायर हो गया। व्हाट अबाउट बी टू सी? ये लो, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। व्हाट अबाउट सी टू डी? इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। ये ग्राफ एक बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। अच्छा, व्हाट अबाउट डी टू ई? ये ग्राफ हो जाएगा। व्हाट अबाउट ई टू एफ? देखें, इस लाइन का स्क्वायर एंड इस लाइन का स्क्वायर ये हमने दोनों सीखे हुए हैं। तो ई टू एफ ये ग्राफ हो गया, एफ टू जी ये वाला ग्राफ हो गया, एंड सो ऑन। महर समझ आ रही है? यस सर। सिद्रा बेटा आपको आ गई इसकी समझ? जी सर। ठीक है बच्चों, अब आगे मूव करते हैं। अच्छा, ये तो था यहाँ तक। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिसमें आपने ग्राफ बनाने होंगे। अब हमने सिर्फ एग्जांपल्स करनी है। एक क्वेश्चन लिखें। A ball is dropped in vacuum under gravity. So obviously the ball will fall with a uniform acceleration. Some graphs will be asked from you. पहला ग्राफ नंबर 1, velocity of the ball versus time. इनमें से कुछ ग्राफ हम पहले कर चुके हैं। दूसरा ग्राफ displacement of the ball versus time. तीसरा ग्राफ height of the ball versus time. अच्छा बच्चों, हाइट और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, पहले हमने ये समझना है। हाइट इज टेकन फ्रॉम द ग्राउंड एंड डिस्प्लेसमेंट इज टेकन फ्रॉम द हैंड ऑफ द पर्सन। फॉर एग्जांपल, हाइट जब हमने लेनी है वो कहाँ से लेंगे, ग्राउंड से लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लेंगे, बंदे के हाथ से लेंगे। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से चलेगा कि यहाँ से हमने बॉल को रिलीज किया और बॉल फॉल कर रही है, तो अब इसमें पॉइंट ऑफ रिलीज कहाँ पे है बेटा? ये जो ये जगह है ना, ये है पॉइंट ऑफ रिलीज। ये उस बॉल का है पॉइंट ऑफ रिलीज। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि फर्ज करें डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली लेटर एस के साथ,
और इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट होगा 0 मीटर। बेटा डिस्प्लेसमेंट का जो 0 होता है वो पॉइंट ऑफ रिलीज होता है, ये बात याद रखना। डिस्प्लेसमेंट का 0 क्या होता है? पॉइंट ऑफ रिलीज, वहां से लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। और जो हाइट है वो यहाँ पे कुछ ना कुछ होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 मीटर से ड्रॉप किया, हाइट का 0 कहाँ पे होगा? वो ग्राउंड पे होगा। बेटा हाइट का जो रेफरेंस है वो ग्राउंड लेवल है, अर्थ है। और जो डिस्प्लेसमेंट का 0 है, अब डिस्प्लेसमेंट जब इधर पहुंचेंगे तो हो जाएगा 10 मीटर। अब डिफरेंट जगह पे जब बॉल ट्रेवल करेगी 2 मीटर, उसका डिस्प्लेसमेंट जब होगा 2 मीटर, तो बेटा उसकी जो हाइट है वो रह जाएगी 8 मीटर। आई बिलीव यू अंडरस्टैंड दिस। जब डिस्प्लेसमेंट बॉल ट्रेवल कर जाएगी, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 7 मीटर, तो उस वक्त जो उसकी हाइट रह जाएगी इस जगह पे वो होगी 3 मीटर। तो हाइट हम हमेशा कहाँ से ले रहे हैं? ग्राउंड से। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से ले रहे हैं हम? पॉइंट ऑफ रिलीज से। तो रेफरेंस, सीधा बेटा आइए ये बात समझ। रेफरेंस जी सर, आ गया। रेफरेंस फॉर डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लेंगे? रेफरेंस फॉर डिस्प्लेसमेंट is the point of release. Reference for displacement is the point of release, while reference for height is the ground level. तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। बात यह है कि बॉल जो है वो फॉल कर रही है विद इंक्रीजिंग स्पीड, तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा और हाइट टाइम ग्राफ क्या होगा? बेटा वेलोसिटी जो है वो हमें पता है कि इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा इट्स इंक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग स्पीड, हाइट इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग स्पीड। बेटा देखें हाइट होगी कम, लेकिन ये जो कर्व की शेप है ये हमें ये बता रही है स्लोप इंक्रीज हो रहा है, ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग ग्रेडियंट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया हाइट। और दो ग्राफ और आपने एज अ होमवर्क बना के लाने हैं। आपने जीपी का ग्राफ बनाना है टाइम के साथ, और आपने केई का ग्राफ भी बनाना है टाइम के साथ। बच्चों इसके आगे फिर इंशाल्लाह हम कल करते हैं। अच्छा कल हमारी क्लास ऑन होगी और टाइम होगा 12, टाइम होगा ठीक है 12 to 2 कर लो, या इनफैक्ट 2 to 4 कर लो, 12 to 2 जल्दी हो जाएगा। 2 to 4 सैटरडे हमने ग्राफ्स करने हैं सिर्फ। और ये सर बड़ी, क्लासरूम में डाल दीजिएगा वरना लोगों को पता नहीं लगता। हाँ मैं अभी डाल दूंगा, लेकिन ये कंपलसरी क्लास है, इसमें हम ग्राफ्स की प्रैक्टिस करेंगे। चलो सर बच्चों मेरा टेक केयर। टेस्ट है कल 2 o'clock। जी बेटा 2 o'clock, मेरा टेस्ट है। तो फिर 12 to 2 कर लें। चलें लेट्स गो विद 12 to 2 दें। सर मैं रिकॉर्डिंग देख लूँ या तो? बस ठीक है, फिर हम 2 to 4 ही करते हैं फिर। तो बस बच्चों 2 to 4 फिर कल क्लास है, और इसमें हम ग्राफ्स करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्लास है, यू हैव टू टेक दैट। ये सैटरडे की क्लास है। चलो बच्चों टेक केयर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
चलो जी A2 वाले बच्चों शुरू करते हैं अब हम। मेरे ख्याल से हमने फाइंड किया था, वो जो सीखा था हमने लास्ट टाइम, वो था फोर्स ऑन टू करंट कैरिंग वायर्स बीइंग इन पैरेलल। यही किया था ना बच्चों? जी सर। मैं जरा वही वाली नोटबुक निकाल लूं अगर मुझे मिलती है तो। हाँ ये रही, आई थिंक ये वाली थी। नहीं, फिर इसके बाद चेंज कर दीजिए। चले खैर, अभी हमने उसके आगे कंटिन्यू करना है। तो एक क्वेश्चन आप लोग लिख लें अबाउट दैट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक वायर है और उसके बाद है यहाँ पे एक वायर, और इन वायर्स का जो इन बिटवीन डिस्टेंस है वो है जी 5 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद इन वायर्स को हमने यूं ज्वाइन किया हुआ, यहाँ से ये, उसके बाद इधर से ये कनेक्शन और इधर से ये कनेक्शन, और यहाँ पे ये सप्लाई है। अब ये सप्लाई कौन सी है? इट इज नॉट गिवन। ये सप्लाई है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए पार्ट, इफ ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, if a DC supply is connected between the wires, if a DC supply is connected between the wires such that the supply current is 2 such that the supply current is 2 amperes, then answer the following. Then answer the following. If a DC supply is connected between the wires such that the supply current is 2 amperes, then answer the following. Question का A part या first part, will the wires attract or repel? हाँ जी बच्चों, क्या कहते हो? वायर्स में अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी? तो हमने ये सीखा था कि करंट अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो, हाँ जी, अट्रैक्शन या रिपल्शन? सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होगी और अगर करंट अपोजिट होगा फिर रिपल्शन। रिपल्शन होगी। तो इट डिपेंड्स कि करंट सेम डायरेक्शन में है या करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है जी, मैं ज़रा क्लास की रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं, 1 मिनट, ये मैं दोबारा रिकॉर्डिंग